about the secondary activities. Now, what is the secondary activity that we need to know now? All right. So, when we talk about the secondary activity, we have to understand that the secondary activities adds value. Yes, secondary activities adds value to the natural resources by transforming the raw materials into the valuable products. For example, let us say, for example, here the any activity that adds value, yes, that adds value to the natural resources. Natural resources is what? The thing that we get from the nature. All right. So all the natural resources that we get from the nature, all these things whatever we value, the resources that we value, and we transform. Yes or no? We transform those raw materials. ये जितना भी रॉ मटेरियल्स हम लोग अर्थ से मिलता है, ये सबको हम लोग क्या करता है? उसको ट्रांसफॉर्म करता है. इसलिए जो भी ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी होता है, ठीक है, द एक्टिविटी दैट इज यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग बाय एडिंग वैल्यू, बाय व्हाट? एडिंग. जो भी एक्टिविटी जो ट्रांसफॉर्म करता है नेचुरल रिसोर्सेज को और वैल्यू ऐड करता है, उसी को हम लोग बोलेगा क्या? सेकेंडरी एक्टिविटीज. आई होप दिस इज क्लियर. ऑलराइट. So, whenever we talk about secondary activities, we have to understand that the activities that adds value, yes, to the natural resources, yes, the activities that adds value to the natural resources are called, and that produces goods or the valuable goods or useful goods for the human society or for people. Those activities are called what? Secondary activities. For example, let us try to explain with example. I'll try to explain you with one simple example. All right. Let's take, for example, see. The materials from the farm, yes, or the forest or mine, yes, and the seas, all those resources, these are all natural resources. All right. From the farm, from the forest, from the mine, yes, from the sea, all these are the natural resources. Now these natural resources are transformed or are processed. Yes, they are transformed. Means what? They are processed. Yes or no? Or we can call it as transformed. Yes, the processing or the transforming activity to make what? To make what? Valuable products. For whom? For humans. All right. So ये activity, जो activity valuable products produce करता है from the natural resources that is received from the earth, yes, and transform it for the useful products. Like, you know, here you can see the woodens are used for the roof. The woodens are used for doors. Yes or no? Some clothes, some utensils, some musical instruments. So these are all other examples how the natural resources are transformed and are made into a valuable products. All right. So this activity is called the secondary activities. Now let us try to go again in details. See, secondary activities therefore are concerned with what? They are concerned firstly with what? Manufacturing. Yes. Firstly, they are concerned with manufacturing. Secondly, they are concerned with what? Processing. Yes, and fourthly, they are concerned with what? Construction. All right. So basically, in secondary activities, we have to understand that basically it involves manufacturing, processing, and construction. All right, or constructing. So these types of activities or these industries are called the secondary activities. All right. So now in secondary activities, remember first is what? First is manufacturing. Second is processing. Third is what? Construction. All right. So these three modes are the main important pillars for the secondary activities. Okay. Now, whenever we talk about secondary activities, we have to remember these three what is called pillars. Now, when we talk about, and at first we already talked about it is about manufacturing. All right. Now, what do we understand by manufacturing? See, manufacturing involves a full array of, ये फुल है, ये मतलब ये एक प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस होता है और एक एक्टिविटी हो रही है जहां मतलब क्या होता है उधर? प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट्स टू मोल्डिंग आयरन्स एंड स्टील्स एंड स्टैंपिंग आउट प्लास्टिक्स टॉयज टू असेंबलिंग डेलिकेट कंप्यूटर कंपोनेंट्स और स्पेस व्हीकल्स. मतलब जो भी हम लोग का प्रोडक्शन होता है, एनी थिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग. ये आपका हाथ से बनाया हुआ भी हो सकता है या टेक्नोलॉजी से भी बनाया हुआ हो सकता है. ठीक है. देयर इज अ क्वाइट स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ऑलराइट. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग द डिफरेंसेस इन द नेक्स्ट स्लाइड फॉर श्योर. बट पहले आप लोग ये समझना जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग बोलने के साथ साथ इट इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन.
मैन्युफैक्चरिंग होने के साथ साथ जो भी एक्टिविटी जो प्रोडक्शन में काम करता है या इन्वॉल्व होता है, ठीक है, एनी एक्टिविटी, ठीक है, एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स इन प्रोडक्शन, जैसे भी हो, चाहे वो हाथ से बनाया हुआ हो या मशीन से बनाया हुआ हो, ठीक है, तो ये सब मतलब क्या होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग में गिरेगा, ठीक है, ये सब इट विल बी ऑल फॉलोइंग अंडर मैन्युफैक्चरिंग. ओके, so manufacturing involves all the activity like production from handicrafts, molding, steel, iron industries, plastic वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज जो भी प्रोडक्शन होता है, इसी को हम लोग बोलेगा क्या, मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, ऑलराइट. नाउ whenever we talk about manufacturing we have to understand that it involves the production. Now what are the characteristics of manufacturing? मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, देखिए पहले का जमाना में क्या होता है, देयर वाज लेस यूज ऑफ पावर, देयर वाज लेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इट वाज ट्रेडिशनल मेथड. यस और नो? नाउ when it comes to manufacturing, now whenever we talk about manufacturing, it involves different types of activity, like there should be an application of power, मतलब एनर्जी चाहिए, क्योंकि अभी ये मैकेनाइज्ड हो गया. यस और नो? इधर में क्या होने लगा, अभी मशीन्स आने लगा, ठीक है. तो बिकॉज ऑफ द यूटिलाइजेशन और यूजेस ऑफ मशीन्स हम लोग को क्या चाहिए हो गया, अभी एनर्जी या पावर चाहिए हुआ. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जनरल टर्म्स. ओके, मैन्युफैक्चरिंग का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है आपका, एप्लीकेशन ऑफ पावर. ठीक है, मतलब उधर पावर जरूरी होता है क्योंकि उधर में मास प्रोडक्शन होता है. प्रोडक्शन मतलब ये एक दो नहीं है, मतलब ऑफ द सेम साइज, सेम क्वालिटी, सेम शेप, ऑलराइट, मतलब बहुत सारा नंबर में. ठीक है, द क्वांटिटी विल बी मोर, ऑलराइट, इट विल बी मास प्रोडक्शन. दैट इज व्हाई इधर में क्या होगा आपका, प्रोडक्शन में पावर होना जरूरी है. सी, मास प्रोडक्शन, दिस इज सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या है कि आपका मास प्रोडक्शन होता है. मास प्रोडक्शन मतलब क्या है, प्लेंटी या ह्यूज नंबर, ऑलराइट. तो जितना भी जो भी प्रोडक्ट वो लोग प्रोड्यूस करता है या जो भी मटेरियल से वो लोग प्रोड्यूस करता है, जो एनी प्रोडक्ट, बी इट एनीथिंग, हैंडी मे बी, इट मे बी स्मॉल पेंसिल, स्मॉल पेन और बिग मशीन्स, ऑलराइट, दे प्रोड्यूस नॉट ओनली वन प्रोडक्ट, दे प्रोड्यूस व्हाट, plenty or in huge number. And another important thing is that सबसे बड़ा बात यह है कि ये सब आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल मतलब क्या है, ये सब सेम है. ठीक है, नाउ जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होता है थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, ऑलराइट, ये सब पहले तो क्या होता है आपका, एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए. सेकेंडली क्या होता है, उसका मास प्रोडक्शन होता है, एंड विद आइडेंटिकल व्हाट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मींस सेम. अगर वो लोग इस तरीका का पेन निकाल दिया, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट एक ही पीस नहीं निकलेगा, वो बहुत सारा पीस, 100,000 200,000 नंबर्स विल बी मोर, ऑलराइट. तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू. सो देयर विल बी प्लेंटी और मास प्रोडक्शन विद आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. ओके, नाउ पहले का क्या होता है, स्पेशलाइज्ड लेबरर्स होता था, पहले भी होता था, जो लोग हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे हैं या ट्रेडिशनल मेथड में जो भी मैन्युफैक्चरिंग करता था. ठीक है, नाउ ऑल दिस आर आल्सो, दोस पीपल वर आल्सो स्पेशलाइज्ड लेबरर्स, ऑलराइट. नाउ these specialized laborers are now transformed into different level. Now these specialized laborers may be what, some technicians, yes or no, technicians, all right, yes, कोई engineers, ठीक है, कोई जो आपका machines जो चलाता है, ठीक है, ये सब जितना भी laborers है, we are also in economics, we are called laborers, all right. So this they are specialized laborers, means मतलब one person relates to one activity. एक का काम होता है कि वो पैकिंग करने में लगते रहेगा, एक का काम वो कुछ ढालने में लगते रहेगा, ठीक है, एक का काम वो मशीन को ऑपरेट करते रहने में काम लगते रहेगा. तो ये जो एक आदमी का एक ही काम होता है, उसको हम लोग बोलेगा स्पेशलाइज्ड लेबर, ऑलराइट. तो ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आर द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. Alright, I hope this is also clear. So whenever we talk about characteristics of manufacturing, remember these three. First is the use of power. Second is the mass production. Third is the specialized, what you call, laborers. Okay. Now, let us come to this point, telling that what is manufacture. मैन्युफैक्चर अंडर ब्रैकेट में है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इधर ये अंडर ब्रैकेट में है. व्हाट इज मैन्युफैक्चर? सो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री
Now, manufacturing industry is different and manufacture industry is different. All right. So, whenever we say manufacture industry, we will be talking about that it is made by hand or machine. All right. Manufacture is what? Manufacture industry is made by hand or machine. All right. So, it is essentially a process. It is essentially ये क्या है? Manufacture क्या होता है? ये एक process है that involves क्या है? Transforming raw materials into finished goods of higher value for the sale where local या distant market. मतलब ऐसे हो इन मार्केट में, ठीक है? तो मैन्युफैक्चर जो भी होता है जितने भी मेड हम लोग का हाथ से बनाया हुआ हो सकता है. सपोज फॉर एग्जांपल आई गॉट सम बैम्बू केन्स, आई गॉट सम बैम्बू प्लांट्स फ्रॉम द जंगल और फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड आई मेड इट अ गुड टेबल. यस, उसको मैंने क्या किया सॉरी इसको मैंने प्रोसेस किया. कौन सा प्रोसेस में इन्वॉल्व होके उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया. कैसा ट्रांसफॉर्म किया? वो जो रॉ मटेरियल जो मैंने बैम्बू लेके आया उसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया. कैसा ट्रांसफॉर्म कर दिया? उसको एक टेबल बना के उसका वैल्यू जो है उसको हायर कर दिया, ठीक है, हाई वैल्यू कर दिया. तो दैट वे हम उसको सेल कर देगा, ठीक है. आई विल बी सेलिंग दिस प्रोडक्ट. यस, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री. ऑलराइट. नाउ मैन्युफैक्चरिंग में भी फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट्स टू हाई टेक. एक हैंडीक्राफ्ट बनाने के साथ साथ अगर देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है? It includes from handicraft to the high tech production. All right. It involves converting the raw materials to finished products. ठीक है. Now manufacturing industry क्या हो? It involves a whole. It is an inclusive. ये बोला ना inclusive method. It is an inclusive method or a inclusive process. मतलब क्या है? The manufacturing industry is an inclusive process or a method of manufacturing industry is a group concept. Okay. So whenever we say industry, manufacturing industry, it will be talking about the entire group or the entire production system. All right. So now this industrial sector is a industrial sector. Whenever we talk about manufacturing industry, this industrial sector is a wider term as compared to the manufacturing sector. Okay. Since manufacturing is a part of industry as a whole. ये पूरा मतलब industry को include कर देता है. ठीक है. For example, now if we take for example, okay, if we take for example mango, all right. Okay, if we take the example of a mango, yes, if we take the example of mango, from mango we produce the juice. So it will, after production of juice, it will involve all the packaging, all right, the packaging, entire packaging processes, the marketing processes, yes, and they will they'll recognize the profit. So this entire process, ये जो पूरा प्रोसेस जो होता है उसी को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम लोग गिना जाता है. ठीक है. सो मैन्युफैक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डिफरेंस ऐसा ही होता है. ठीक है. लाइक whenever we talk manufacture, we have to talk about that handicraft, and maybe it may be used by handicraft or it may be used by machines. Whenever we talk manufacturing industry, it includes पूरा सिस्टम को इंक्लूड कर देते हैं. ठीक है. फ्रॉम द प्रोडक्शन अप टू द प्रॉफिट और लॉस. ठीक है. तो दैट इज व्हाट इट इज. नाउ whenever we talk about manufacturing, there are certain characteristics that we need to know. Alright, हम लोग कुछ characteristics जानना जरूरी होता है. ठीक है. Now the first thing that we need to know is that the characteristics of modern large scale manufacturing. Alright, large scale manufacturing. So first मतलब क्या है उसका? इसका first characteristic क्या है? Specialization of skills and methods of production. Specialization of skills and methods of production. ये कुछ शब्द आप लोग को याद रखना पड़ेगा. ठीक है. Now this large scale manufacturing industry, what happens is this, कि उसका प्रोडक्शन जो है वो लार्ज क्वांटिटीज में करता है. ठीक है. पूरा अमाउंट उसका क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा करता है. ठीक है. एंड इट विल बी वेरी स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स बाय ईच वर्कर परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क रिपीटेडली. जैसा कि मैंने बोला आप लोग को, अगर ये पेन बनाने में एक इंक को लगाएगा, एक मैग्नेट को लगाएगा, एक कवर को लगाएगा, एक पैकेजिंग करेगा, एक स्टैम्प को लगाएगा, एक लोगो को लगाएगा, तो एवरी लेबरर विल बी स्पेशलाइज्ड इन हिज और हर ओन एक्टिविटी. ऑलराइट. सो देयर इज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स. ठीक है. तो दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स is a very important characteristics of modern large scale manufacturing industry. Okay. Now second one is the mechanization.
what do we understand by mechanization? It refers to the use of gadgets which accomplish the task by automation. मतलब पहले देखो हम लोग, जब भी हम लोग इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में काटता था या देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो पीपल यूज टू डू द वर्क मैनुअली. ये इधर से उधर तक उठाना है, इधर ये सामान को उधर से इधर तक लेके जाना है, ठीक है. तो द एक्टिविटी यूज टू बी डन बाय मैन और द लेबरर्स. अभी क्या होने लगा? एवरीथिंग इज डन बाय ऑटोमेशन. ठीक है, कोई उठाना नहीं चाहिए. अभी प्रोडक्शन हो गया, डायरेक्ट उसको पैकिंग करते हैं रोबोट. अभी तो फिर से आ गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जो बोलते हैं, ठीक है. सो दिस ऑल हैज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. यस और नो? देयर इज अ मैकेनाइजेशन. मतलब क्या है? देयर इज लेस ऑफ लेबर इन्वॉल्व. Alright, so there is less of laborers involved in large scale manufacturing industry. So there is, since there is a mechanization, there is a technological innovation. So there is a group of people, or in large scale manufacturing industry, there is a group of people who will be involved in research and development. मतलब ये लोग सिर्फ देखता है ये करने से कैसे होगा, ये प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट कितना यूजफुल है या कितना यूजफुल नहीं हो सकता है. Yes, what will be the benefits for the human society? There will be the large-scale manufacturing industries invest in technological innovation. There will be lots of innovations. There will be lots of research, and there will be lots of development. Okay. So this was about the a few characteristics of large-scale industries or manufacturing industries. Another main important part for the, when we talk about characteristics is that, देखिए, उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और स्ट्रैटिफिकेशन. ठीक है, उधर में मालिक तो सब कुछ काम नहीं करते. ठीक है, ये एक स्ट्राटा में काम करता है, यह एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो जाता है. ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि डायरेक्टर, चेयरमैन, ये वगैरह वगैरह नीचे तक. यस, सो देयर विल बी ए स्ट्रैटिफिकेशन. मतलब क्या? डिवीजन. ठीक है, देयर विल बी डिवीजन ऑफ लेबर. नाउ सबका काम अलग अलग होता है. ठीक है, एचआर का काम अलग होता है. ठीक है, प्रोड्यूसिंग या सेल्स का अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग होता है. सो देयर विल बी डिफरेंट डिवीजन और स्ट्रटा. सो द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन. सो दिस इज अनदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द स्ट्रैटिफिकेशन. ये क्या होता है? मतलब इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? अ कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी. मतलब बहुत सारा मशीन यूज करते हैं. देयर इज अ यूज ऑफ मशीन्स. देयर इज मोर यूज ऑफ मशीन्स. नाउ देयर इज अ मीन्स व्हाट? यूज ऑफ मशीन मीन्स व्हाट? लेस लेबर. यस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. पहले भी मैंने बता दिया आप लोग को कि जितना भी यूज करेगा मशीन्स उतना ही कम लेबर का जरूरत होता है. ठीक है, नाउ देयर विल बी कॉम्प्लेक्स मशीन. मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स मशीन? मतलब हाई टेक्नोलॉजी मशीन्स, ऑलराइट, विल बी यूज्ड इन मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. नाउ देयर इज एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर. यस, देयर विल बी एक्सट्रीम स्पेशलाइज. कोई किसी का काम सिर्फ एक ही स्टैम्प लगाते रहना है, कोई किसी का काम सिर्फ एक ही बटन को लगाते रहना है. ठीक है, तो दिस आर वेरी स्पेशलाइज्ड स्किल्ड लेबरर्स आर इन्वॉल्व इन लार्ज स्केल व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. हाउएवर इट रिक्वायर्स वास्ट कैपिटल, money is required. Lots of money is required in the large scale manufacturing industries. There's a large organizations, they have a big organization. मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ही नहीं होता है, अलग अलग होता है. ओके, देयर विल बी लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लाइक फॉर एग्जांपल, नाउ इफ यू टेक फॉर एग्जांपल टाटा. ये सुनो, टाटा इज इवन इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. दे आर इन फूड एंड बेवरेजेस, यस, इन वाटर. यस, दे आर इन सो मेनी अदर सेक्टर्स, पावर, यस, आयरन, स्टील, ऑल दोस प्लेसेस. Yes, even in technology, yes or no? So, and they are very large organization. They are not only limited to only one sector. All right, now they have an executive bureaucracy. मतलब क्या है? ऑफिसर्स, अलग अलग ऑफिसर्स अलग अलग काम में काम करता है. ब्यूरोक्रेसी मतलब वो लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग आदमी लोग देखता है. ठीक है, देयर इज अ स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स. सो ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या है? जो ऑफिसर्स काम करता है, या एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, नाउ this is the organizational structure and stratification of the large scale what you call manufacturing industries has these types of characteristics. Okay.